today's event on the behalf of the entire Department of English at PG College would love and be proud to extend a very warm welcome to our honorable and esteemed chief guest, Sinu Joseph ma'am, our respected manager sir, Dr. Sashikant Dikshit, our respected principal ma'am, Professor Rachna Dubey, our respected ma'am, Dr. Bhanumati Mishra, head of the Department of English, and also our respected teachers and participants present here. I would like to inform that throughout the webinar, your mics will be muted and you're requested to switch off your cameras for the easy going of the sessions. And please put down your questions in the chat box below. And your cooperation and appearance toward the webinar will be highly appreciated. Now I would like to call our manager, sir, Dr. Shashikant Dikshit, for his blessings. Over to you, sir. Ma'am, you are muted. Sorry. I said manager sir's mic is muted and you can unmute him and make him a co-host maybe. Ma'am, he is the co-host. Okay, yes. Hello. Yes, Hello. sir. Namaskar, sir. Welcome. Namaskar. Good morning. Sir, your yeah, it's frozen actually. To everybody. कनेक्शन नहीं हो रहा था. आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है. आवाज आ रही है? Hello. जी जी. Hello. आ रही है. Okay. First English department having this number of webinars since last 2-3 weeks, and this is perhaps the last seminar. And I thank Dr. Bhanumati ji for instigating and our students to do all these things. And especially again, I would like to thank Shivangi Rai, who always reminds me one day before, sir, you have to attend it. So this Mahila PG College, which is accredited grade A by NAT and the potential for excellence award. And in this Mahila PG College, Department of English is organizing this one-day interdisciplinary seminar on the menstruation and its restrictions. It is very important for the girls to know everything, and they should have any doubt, they should ask the learned speaker. And you have today our learned speaker, Sinu Singh. She is the menstrual educator and counselor and author of so many subjects. I hope this will be a very successful seminar organized by the English department. Once again, I congratulate all the students of the MABA and all the teachers and faculty members of the English department who are listening this seminar. And our last, not the least, our principal, who is also a motivational force behind all these seminars and every department is doing all these things. Once again, I congratulate Dr. Bhanumati ji for having this wonderful seminar. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for your kind blessings. Now I would like to call our principal ma'am, Dr. Rachna Dubey, for her welcome address of the speaker. Over to you, ma'am. Has ma'am joined us?
I think, I don't know, I can't see, ma'am, maybe there's some problem with the connection. Yes, Unable ma'am. to join us. Okay, okay. Now we'd like to call Vidisha Chitrvans of Indic Warriors. Vidisha is one of the oldest members of Indic Warriors who have been actively initiating and performing every single day online and grounds project. Vidisha is passionate to learn about the real history and culture to educate young minds so that she can connect to their roots. Being born and brought up in Varanasi, Vidisha completed her graduation in Hindi from Arya Mahila PG College, Varanasi. Vidisha is a student, a poet, and a reader, but above all, a Bhartiya. I would like to call Vidisha Chitrvans of Indic Warriors. Over to you, Vidisha. Thank you, Dee. Namaskar. My name is Vidisha Chitravansh and I am a member of Indic Warriors. So I have asked to introduce my group to you. So to be exact, Indic Warriors are the group of students and mentors from all walks of life who work towards reviving Indic civilization. Our motto is to revive and instill Indian pride. We involve ourselves in on-ground projects in Varanasi and other cities on social causes and research on specific projects and career guidance. As young people, we seek a sense of belonging and pride in what we are, which unfortunately we don't get anywhere, be it educational institution or our homes. But that's the reason why most of the people of our age are either blindfolded by the so-called fancy activism or don't take any interest at all. This, to be honest, is a great loss, since we belong to a civilization that was, is, and will be one of the best. The ideology, the belief, and and the approach our ancestors had toward everything was certainly the result of long sadhana. We can't let it go like this. That's the reason why a group like Indic Warriors is needed, and it was created to bring those who think alike together with the motive to make people feel proud of what they are and where they're coming from. Thank you. Namaskar. Thank you so much, Vidisha, for what you're doing and make us aware of the Indic Warrior thing. Now, I would like to call Shadhana for the introduction of the theme of the webinar. Over to you, Shadhana. Thank you, Rohini. Jai Hind to all and everyone present here. This is me, Sadhna, student of MA final year. As you all already know that our topic for the webinar is menstruation and its restriction. I personally like the topic very much, and I got an opportunity to introduce the theme of the webinar in front of you. So I would like to start from here. Today, while most women and young girls in India are being told that menstruation is an impure and inconvenient, ancient Indian texts have long list of to-dos or not to-dos prescribed for menstruating women. That Indian women follow certain practices such as avoiding specific type of food, cooking, touching other, or entering temple during menstruation. But rarely do they explain the reason behind this menstrual regime. They claim that they are following such practices in the name of culture and tradition, which they have been carrying from their ancestors. In this webinar, we look for such understanding of the cultural practices around menstruation that are currently followed by India. For further discussion, I would like to call Smita for the introduction of the speaker. Over to you, Smita. Thank you. Thank you, Sadhna. A very warm good morning to one all present over here. It is such a great honor for me to get the opportunity to formally introduce our guest speaker, Sino Joseph ma'am, in today's webinar. Sino Joseph is an author, menstrual educator, TEDx speaker, co-founder, and managing trustee of Maitreya Speaks. She also works with the Forward Foundation.
She has done extensive action research in the areas of menstrual and reproductive health since 2009. She also traveled across rural India, interacting with thousands of adolescent girls and women directly to get a first-hand experience of menstrual practices and their impacts on women's menstrual health. Her work on women's health-related topics has been unique in its efforts of unearthing the ancient science behind forth a narrative, which is the Bharatiya perspective on topics related to women. She has surveyed and studied several temples of India and observed the restriction owing to menstruation and their impact on women's menstrual health. She is also an author of 2 books focused on menstrual sciences titled Women and Sabrimala, The Science Behind Restrictions, and the second one is Ritu Vidya, Ancient Science Behind Menstrual Practices. I warmly welcome you, ma'am, and thank you so much, ma'am, for accepting our invitation and joining us today. Thank you so much. Over to you, Rohini. Thank you so much, Rashmita, for such an introduction of the speaker. Now I'd like to call our Bhanumati Mishra ma'am for to say a few words. Over to you, ma'am. Thank you, Rohini. Namaskar, Sinu Joseph ji. Welcome to RMLA PG College and Department of English. Respected manager, sir, namaskar. Thank you so much for taking time out on a Sunday. And I know that my principal, Professor Rachna Dubey ma'am, her, she's rock solid behind us on any endeavor that we take up. So I welcome all the students and also all the faculty. Thank you so much. I would like to bring to our esteemed speakers notice that this entire series of webinars that we are conducting is of the students, by the students, and for the students. The entire concept to talking to public speakers like you and interacting with them, you have no idea how morale boosting that is and what it does to their confidence. And I am so grateful to you, Sinuji, that without any airs, like and without your magnanimity, in fact, for accepting it without an if and but, and the way you interacted with the students, I've been getting a constant feedback that they are overwhelmed. And I personally thank you for not just your scholarship, but for the kind of person that you must be. I'm sure that you interacted with the students without that sense of ego or anything like that. Thank you once again from the bottom of my heart. And I'm eagerly looking forward to listening to you as each of my student is. And thank you so much for choosing this particular topic, which is so relevant. And without much ado, can we start then with the talk? Yes, Rohini, can we start now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we will welcome our honorable esteemed speaker, Sinu Joseph ma'am, for the talk session. Over to you, ma'am. Namaste, everyone. Namaste, ma'am. Am I audible, Rohini? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're perfectly audible and visible. Wonderful. Now, firstly, my sincere thanks to the management of Arya Mahila College, to Dr. Bhanumati ji, to Rohini, and to all of you wonderful young women for inviting me to this session. Thank you all. I'm very happy to be here. I was just telling Bhanumati ji that if girls call me, I will come. There is nothing, you don't even have to ask me twice. My work is for you, it's with you, it's about you. So it will always be a pleasure for me to come whenever I'm invited. Rohini had requested if this talk can be bilingual. तो थोड़ा बहुत जो भी मुझे हिंदी आती है तो मैं बीच में हिंदी में भी बात करूंगी. अगर आप में से किसी को सवाल पूछना है तो आप हिंदी में पूछिए और मैं जितना हो सके हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगी, बाकी अंग्रेजी में होगी. तो कल मैंने रोहिणी से पूछा था कि आज कौन-कौन से विषय के ऊपर बात करनी है, तो पूरा 15-20 मिनट रोहिणी ने मुझे एक लिस्ट ही दे दिया.
मैम पीरियड के टाइम पे खाना क्यों नहीं पकाना चाहिए, मंदिर क्यों नहीं जानी चाहिए, तुलसी के पौधे को क्यों नहीं छूना चाहिए दूसरों के साथ, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि देखो रोहिणी, ये एक एक विषय जो है ये पूरा 1 घंटे तक मैं बात कर सकती हूँ। नहीं नहीं मैम, उसके साथ आपको शबरीमला के बारे में भी बात करनी होगी। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो 2 घंटे लगेंगे। तो आज का विषय ही कुछ ऐसा है कि हमारे मन में सवाल तो कई सारे हैं और उनके जवाब भी है, लेकिन उस जवाब को पूरी तरह समझना अगर होगा तो वक्त लगेगा, समय लगेगा। और आज मैंने थोड़ा प्लान किया है कि 40 मिनट की अवधि में जितना हो सके मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और उसके बाद अगर आप सवाल पूछोगे तो हम उन्हीं सवालों के ऊपर आगे हम चर्चा करते जा सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया, क्योंकि सब्जेक्ट इतना लंबा है, इतना वास्ट है, हम कहीं जा वी माइट जस्ट लूज द ट्रैक इजीली। इसलिए मैंने थोड़ा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया जो मैं अभी शेयर करूंगी, और इस प्रेजेंटेशन के द्वारा थ्रू दिस प्रेजेंटेशन हम इन विषयों के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद Q&A सेशन होगा, ठीक है ना। तो मैं अभी अपना प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी। अच्छा, रोहिणी, इज दिस विजिबल? Yes, ma'am, it's perfectly visible. ठीक है ना। अच्छा, तो अब मैं एक के बाद एक स्क्रीन चेंज करती जाऊंगी, अगर कहीं ना कहीं जाके वो अटक गया या फिर दिखाई नहीं देता तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। आई मे नॉट बी अवेयर ऑफ Yes, इट। ma'am. Yes. Yes, ma'am. थैंक यू। तो आज का विषय जो है मेंस्ट्रुएशन एंड इट्स रेस्ट्रिक्शंस। तो ये कौन से रेस्ट्रिक्शंस है और क्यों है ये रेस्ट्रिक्शन? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि ये क्यों ऐसे रेस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं, है ना। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में इसका 3 भाग है। पहला, हम उन सवालों को पहले आगे डालेंगे कि क्या है ये सवाल, जिस तरह रोहिणी ने पूछा था और उससे कई ज्यादा आप सबके मन में भी होगा। तो ये कौन से सवाल है जो हम बार बार सुनते हैं कि पीरियड के टाइम में ये मत करना, वो मत करना, या फिर यही करना वही करना, ये क्या सवाल है, व्हाट आर दोस क्वेश्चंस। तो उसे हम एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद हम आएंगे कि ये सवाल उठे कैसे या फिर ये नियम बने कैसे, वो क्या हमारे ऋषि और मुनियों को कौन सा ऐसा विज्ञान था जिसके आधार पर ये नियम बने थे। तो हमें ये सोचना होगा, क्योंकि इनमें से कई सारे बातें आयुर्वेद की किताबों में है, तंत्र के नियमों में है, मंदिर से जो भी जुड़ा है वो आगम शास्त्र और तंत्र से जुड़ा है, बाकी जो खाने का है, दूसरों को नहीं छूने का है, वो सब आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। तो हमें ये सोचना होगा कि इसके पीछे का जो ज्ञान की जो परंपरा है वो कौन सा है, व्हाट इज द अंडरलाइंग नॉलेज सिस्टम, जिसे जाने बिना हम इन सवालों को और उनके कारण को कभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। सो व्हाट इज दैट अंडरलाइंग नॉलेज सिस्टम, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। और फिर तीसरा, हम एक उदाहरण के तौर पे, सभी प्रैक्टिसेस तो यहाँ 40 मिनट की अवधि में तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, बट एज एन एग्जाम्पल हम 3 या 4 ऐसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि विथ दिस नॉलेज सिस्टम, जिसके बारे में अभी बताऊंगी, इसके थ्रू हम किस प्रकार इन बातों को बहुत ही अलग नजरिए से, बहुत ही नए दृष्टिकोण से हम देखेंगे और समझेंगे। तो ये होगा आज का विषय, ठीक है। तो पहली बात, सवाल। ऐसे 5 सवाल है जो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पहली बात, काफी सरल सा दिखता है, पीरियड के टाइम पे महिलाओं को ये क्यों कहा जाता है कि डू नॉट कुक फूड, किचन में मत जाओ और खाना नहीं पकाओ। ये तो दक्षिण भारत में बहुत है, मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ ये है या नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में ये काफी, हर घर में पीरियड के टाइम पे महिलाएं खाना नहीं पकाती, जो घर के पुरुष है वो पकाते हैं। और इसीलिए दक्षिण भारत के जो पुरुष है वो अच्छा खाना पकाते हैं। उन्हें सीखना पड़ता है ना। तो ये नियम क्यों है। दूसरी बात,
तुलसी के पौधे को नहीं छूना है इस टाइम पे। घर में अगर पूजा का मंदिर हो या तुलसी का पौधा हो, इन चीजों को छूना नहीं चाहिए, इनके आसपास नहीं जाना चाहिए। ये ऐसा नियम क्यों है? और तीसरी बात, जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, लेकिन कुछ भी खट्टा जैसे कि कर्ड या अचार नहीं खानी चाहिए। पपाया जो फल है, लेकिन फिर भी पपाया नहीं खानी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खानी चाहिए। तो ये सब बातें क्यों है, क्यों खाने में इतने सारे नियम है पीरियड के टाइम पे, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और चौथा बड़ा सवाल, मंदिर पीरियड के टाइम पे क्यों हमें कहा जाता है कि मंदिर आपको नहीं जाना है? क्या ये वाकई महिला अशुद्ध है, यही कारण है? क्या इसके पीछे भी और गहरा एक विज्ञान छिपा है? उसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे। और पांचवा और आखिरी जो सवाल है, शबरीमला। तो एक तो बात है कि पीरियड जब होता है तब मंदिर नहीं जानी चाहिए, लेकिन शबरीमला में ये ऐसा है नियम कि अगर आपको उस वक्त पीरियड हो रहा हो या ना, लेकिन अगर आप उस माहवारी के उम्र के हो, यानी 12 से 12 to 50 इयर्स की उस रिप्रोडक्टिव एज की अगर महिला हो, तो आपको शबरीमला में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। आप चाहे उस समय आपका पीरियड हो रहा हो या नहीं, लेकिन अगर आप उस उम्र की हो, आपको इस मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो क्या राज है इसके पीछे? क्या ये राज है या विज्ञान है जो हम भूल चुके हैं? इन सभी बातों को हम आज एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं अब तक ये आपसे कहती आ रही हूं कि क्या इसके पीछे कोई ऐसी ज्ञान परंपरा है जो हमारे ऋषि और मुनि लोग जानते थे और हम भूल चुके, या फिर ऐसा था कि हमारे ऋषियों ने जेंडर इक्वालिटी, सोशल कंस्ट्रक्ट, पेट्रियार्की, इन विषयों के बारे में सोचकर लिखा गया ये सब नियम? क्या ऐसा है या कुछ और है? ठीक है, हमारे देश में जो हम जब विज्ञान की बात करेंगे तो एक बहुत ही एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और वो है सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म यानी सटल, इंग्लिश में हम सटल बोलते हैं, यानी जो आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसे उसके अनुभव के द्वारा पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसे हम सूक्ष्म विज्ञान बोलते हैं। और यही, जब तक कि हम इस सूक्ष्म विज्ञान को अच्छी तरह समझ ना ले, हम कभी भी इन नियमों को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो ये क्या है ये सूक्ष्म विज्ञान? तो इसमें 3-4 बातें मैं आपको बता दूं। देखिए, जब मैं छोटी थी तब दूरदर्शन था। ये ऐसा केबल टीवी ये सब तो नहीं था, दूरदर्शन था। और दूरदर्शन में रामायण दिखाते थे। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने रामायण देखा होगा कि नहीं, लेकिन रामायण के दूसरे ही एपिसोड में श्री राम और उनके भाई जो 12 साल की उम्र में, उन्हें गुरुकुल भेज दिया जाता है। और गुरुकुल में ऋषि ने, जो उनके गुरु थे, उनका पहला पाठ क्या था? अब आप सोचोगे कि श्री राम तो राजा बनने की तैयारी के लिए उनको भेजा होगा, तो शायद अर्थशास्त्र के बारे में समझाया होगा, शायद कृषि के बारे में, शायद टैक्सेस के बारे में, राजनीति के बारे में। नहीं, उनके लिए पहला पाठ, जो अभी आप दूरदर्शन में रामायण का दूसरा एपिसोड आप ढूंढकर देखिए, यूट्यूब में दिखेगा आपको, पहला ही पाठ था कि मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, और वो 5 तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो वही से गुरुकुल की शिक्षा प्रारंभ होती थी। सूक्ष्म विज्ञान की उस विषय को लेकर ही शिक्षा प्रारंभ होती थी। और अंत में जो तीसरा एपिसोड है, उसमें तीसरे एपिसोड तक राम और उनके भाई गुरुकुल में बड़े हो जाते हैं, 12 साल गुरुकुल में बिताते हैं। और जाते वक्त भी उनके गुरु उन्हें सूक्ष्म शरीर के बारे में ही समझाते हैं। यानी उनके गुरु कहते हैं, देखो मेरे शरीर में 6 चक्र है और ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, और इस चक्रों की ऊर्जा क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये सब दूरदर्शन में रामायण नाम की एक सीरियल में भी दिखाया गया था। तो अब आप सोचिए, उन दिनों
जब बच्चे गुरुकुल जाते थे, हमारी यहाँ एक ऋषि परंपरा होती थी, तो कितना सारा भारतीय ज्ञान परंपरा इस सूक्ष्म विज्ञान के बारे में था। और बिना इस आधार के हम कैसे इन नियमों को जान सकते हैं, क्योंकि इसके समझ के आधार पर ही तो ये नियम बने गए हैं, है ना। तो आज हम इस सूक्ष्म विज्ञान के बारे में थोड़ा सा एक झलक, मानो एक झलक है, वो हम देखेंगे, और किस तरह इस झलक से भी हम कितने सारे चीजों को गहराई तक समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या कवर होता है जब हम सूक्ष्म विज्ञान के बारे में बात करते हैं, हमारे शरीर को लेकर क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं, वो यहाँ पे लिखा गया है। पहला है पंच महाभूत। इसे हम 5 एलिमेंट्स, इंग्लिश में अगर कहना है तो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स है जो हर एक मैटर में हम देख सकते हैं। तो हर एक चीज, एवरीथिंग दैट इज living and non-living is composed of these 5 fundamental indivisible atoms. जब हम इंग्लिश में एटम्स बोलते हैं या अणु बोलते हैं हिंदी में, तो इसका मतलब न्यूटन वाला एटम नहीं है, क्योंकि न्यूटन के बाद क्वांटम फिजिक्स आया और उन्होंने कहा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जहां पे पार्टिकल फंक्शंस एज अ वेव एंड एज एन एटम। तो जब हमारे ऋषियों ने इन 5 भूतों के बारे में बताया, तो दे वर रेफरिंग टू द सब एटॉमिक, यानी इससे फाइनल कुछ नहीं है। जो भी आज आप क्रिएशन में देखते हो, जो भी मैटर है, उसका मूल तत्व है ये 5 एलिमेंट्स। और ये क्या क्या है? पृथ्वी, अर्थ, जल, वाटर, अग्नि, फायर, वायु, एयर, और आकाश। आकाश वो तत्व है जिसके ऊपर पहले के चारों तत्व, इट इज अ सबस्ट्रेटम। आकाश एक मीडियम है, एक सबस्ट्रेटम है, जिसमें बाकी के 4 तत्व है। और जब हम पृथ्वी, जल, अग्नि ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि इन चीजों के गुण जो है, इन चीजों के गुण हर एक चीज में अलग अलग मात्रा में हम देख सकते हैं। जैसे कि नदी में, सागर में हम जल के गुण को, जल का तत्व अधिक है ना। तो इसी प्रकार अलग अलग चीजों में इन 4 या इन 5 में से किसी 1 या 2 की मात्रा ज्यादा होगी। और ये फंडामेंटल नॉलेज है, पंच महाभूत। हम भी इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं, ठीक है। और इन 5 तत्वों में से 2 तत्व मिलके बनता है त्रिदोष। ये आयुर्वेद का फंडामेंटल बेसिस है। जैसे कि पृथ्वी और जल का तत्व अगर जुड़ जाए तो वो कफ दोष कहलाता है। पृथ्वी और जल का जो जुड़ जाता है वो कफ दोष। जब अग्नि की मात्रा ज्यादा होता है तो उसे पित्त दोष कहते हैं। जब वायु और आकाश एक साथ आते हैं उसे हम वात दोष कहते हैं। तो वात बनता है वायु और आकाश से, पित्त बनता है अग्नि से, और कफ बनता है पृथ्वी और जल से। इसका महत्व है और मैं आगे के स्लाइड्स में समझाऊंगी। तो त्रिदोषों को समझने की आवश्यकता है। उसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली अगर हमें ये जानना है कि पीरियड के टाइम में मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए, तो वो विषय है पंच प्राण का। अब प्राण क्या है? प्राण वो चीज है जिसके जीव के शरीर में जब प्राण प्रवेश होता है तो तब जीव जाके जीवी या प्राणी बनता है। और जब हमारे शरीर से प्राण निकलता है तब मृत्यु होती है। तो प्राण वो चीज है जिसके कारण हम सब जीवित है। उसी प्राण के 5 तरह के फोर्सेस है जो हम शरीर में अनुभव कर सकते हैं, और उसके बारे में भी हम आज जानेंगे। तो उन 5 प्राणों के नाम है प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, ठीक है। उसके बाद हमें जो चीज जाननी है वो है चक्रों के बारे में, और चक्र क्या है और नाड़ी क्या है, और क्या ये षट चक्र यानी 6 चक्र क्या है ये चीज, और ये मंदिर से इसका क्या ताल्लुक है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। और आखिर में आगम शास्त्र वो किताब है जिसमें
मंदिर से जुड़े हुए हर एक वो नियम लिखे गए हैं। तो देखिए, एक सरल सा सवाल, हम मंदिर क्यों नहीं जानना चाहिए, उसे अगर ठीक से समझना है तो कितने सारे बातों को हमें गहराई से समझना होगा, है ना। तो इसी कारण से इतना कठिन है इन चीजों के बारे में बात करना। हमारे घर में नियम तो बताते हैं, लेकिन क्या ये सब हम समझा पाएंगे? बहुत ही कठिन होगा ना, जब तक ये चीजें हमारे एजुकेशन सिलेबस में नहीं आ जाती। जिस तरह आप आज साइंस में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उन सब चीजों को समझते हो, सीखते हो, उसी प्रकार किसी टाइम में हमारे गुरुकुल की शिक्षा के द्वारा ये सभी चीजें भी सिखाई जाती थी बच्चों को। आज हम वो भूल गए हैं, लेकिन इसके आधार पर जो नियम बने हैं वो हम आज भी फॉलो करते आए हैं, है ना। तो इनके आधार पे हम कौन कौन से नियम आज हम डिस्कस करेंगे, समझ सकेंगे, ये आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे। पहली बात, खाना क्यों नहीं पकाना चाहिए पीरियड के टाइम पे। और उस छोटे से सरल से सवाल के लिए देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम मैंने डाला है यहाँ पे। तो क्या है ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम? ये है हमारे शरीर के अंदर प्राण वायु जिस प्रकार चलता है उसका एक इंटरनल सर्किट जो हम कह सकते हैं। प्राण जो है, अगर आप राइट साइडेड हो, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो, खाना खाते हो वगैरह, इफ यू आर अ राइट हैंडेड पर्सन, तो प्राण की जो सर्किट है कुछ इस प्रकार है। आपके राइट हैंड से वो प्राण अंदर जाता है, राइट हैंड से निकलता है, राइट हैंड से प्राण निकलता है। यहाँ बीच में इन द सेंटर ऑफ योर पाम एक छोटा सा चक्र है जहां से प्राण निकलता है। हम अब जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं ना, हाथ से कुछ निकल रहा होता है, क्या है वो? या हाथ में बीच में एक छोटा सा चक्र है और उससे जो निकलता है वो है प्राण, और उस प्राण से हमारी ब्लेसिंग, हमको आशीर्वाद देते हैं। तो हाथ में प्राण यहाँ से निकलता है, और आपके लेफ्ट हैंड में भी ऐसा ही एक छोटा चक्र है जहां से प्राण अंदर जाता है, और प्राण के इस ऊपर सर्किट में लेफ्ट हैंड से अंदर जाता है और हाथ से लेकर आपके हृदय के चक्र में, यानी अनाहत चक्र में, वहां एक स्थल है, वहां जाता है और वहां से वापस आपके राइट हैंड के थ्रू। आप इसे अनुभव कर सकते हैं। अगर अब मैं जब बात कर रही हूं आपसे, आपके हाथ ऐसे ऐसे बहुत पास पकड़िए इसको, और 5 मिनट, बस 5 मिनट आप इसको ऐसे पकड़िए और आपको खुद अनुभव होगा कि हाथों के बीच में एक फोर्स है। आपको, अगर आप फोकस करोगे, कंसंट्रेट करोगे, आप अगर इसे मेडिटेशन के बाद करोगे, बहुत क्लियरली आपको दिखाई देगा कि अरे कुछ है मेरे हाथों के बीच। और आप धीरे से एक्सपैंड करते जाइए, आपको वो एक जैसा एक कुशन है, एक फोर्स का कुशन, उसे आप महसूस भी कर पाओगे। तो प्राण जो है आपकी आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन आप उसका अनुभव अवश्य कर सकते हो। तो ये एक है प्राण का ऊपर के शरीर में एक सर्किट, और ऐसे ही नीचे के शरीर, नीचे के हिस्से में भी एक सर्किट है। देखिए ये एरोस जो देखिए, राइट हैंड से प्राण निकल रहा है और लेफ्ट हैंड से प्राण जो है वो अंदर जा रहा है, और हार्ट में यहाँ पे जाके यहाँ से एक्सचेंज होता है। ऐसे ही आपके पैरों से भी राइट लेग से निकलता है और लेफ्ट लेग से अंदर आता है, और हम पृथ्वी से प्राण लेते हैं। We absorb it from the earth also. इसीलिए हम बिना चप्पल के चलते हैं, जब मंदिर जाते हैं ना, चप्पल बाहर रख के, क्योंकि हम मंदिर से भी वो अब्सॉर्ब कर पाएंगे। और जब हम नमस्ते करते हैं तो क्या कर रहे हैं? हम इस प्राण की सर्किट को क्लोज करते हैं, ताकि अगर दूसरों का जो सर्किट है, अगर उनका सर्किट ओपन है और हम कई से उठा नहीं ले सकते, we don't want to receive it from unpleasant people, तो हम हाथों को ऐसे क्लोज करके एक सर्किट अपना खुद का बना लेते हैं, ताकि हम एनर्जेटिकली वी आर कंप्लीट, और उसी से हम नमस्ते बोलते हैं, है ना। और अगर आप इसे नोटिस करोगे, एक छोटी सी बात, जिस प्रकार हमारे वस्त्र बनते हैं, महिलाएं साड़ियां पहनती है, पुरुष धोती पहनते थे पहले,
इसका जो जिस प्रकार हम इसे पहनते हैं, है ना, ये हमारे प्राण के सर्किटरी से बिल्कुल मिलता है। सो आप सोचिए, हम जो प्लीट्स डालते हैं साड़ी में, उस प्लीट का डायरेक्शन कैसा है, और क्यों हम ऐसे वेस्ट के उस जगह में हम उसे अंदर डालते हैं, क्योंकि वहां पे मूलाधार चक्र, ये जो आपको दिखाई देता है, ये मूलाधार चक्र है। और जब हम यहाँ पे टक इन करते हैं तो हमारे शरीर के लोअर पोर्शन से प्राण को हम मूलाधार में बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। पिछले जमाने में जो साड़ी पहनते थे वो पुरुषों की धोती जैसे था, नीचे का हिस्सा, है ना, क्योंकि उस प्रकार पहनने से मूलाधार चक्र में काम करने की ताकत आती है। आप भरतनाट्यम डांसर्स को देखिए, आप कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट्स जो करते हैं उनके वस्त्र को, उसके वस्त्र के बारे में सोचिए किस प्रकार वो पहनते हैं। और ऐसे ऊपर के हिस्से में जो साड़ी हम प्लीट करके यहाँ पल्लू डालते हैं, वो भी प्राण के उस चालन को, उस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए यही डिजाइन बनाया गया। तो जब भी हम साड़ी पहनते हैं और धोती पहनते हैं, इनफैक्ट दक्षिण भारत में तो ये नियम है, अगर आप मंदिर जाओगे तो लड़कियां साड़ी ही पहननी चाहिए और पुरुष जो है वो धोती पहनकर ही जाना चाहिए। ये कोई पेट्रियार्की का विषय नहीं है, ये इसलिए है ताकि हम जब मंदिर पहुंचते हैं, हम अपने तन से भी, सिर्फ मन से नहीं, तन से भी उस प्राण शक्ति को अपनी ओर खींच लेंगे। अपने वस्त्र से भी उस प्राण शक्ति को अपने अंदर ले सकते हैं। इतना सोचकर हमारे वस्त्र भी, जिस प्रकार हम साड़ी धोती पहनते, आप सोचिए कितना सोच समझकर उसका डिजाइन बनाया गया था, है ना। तो मैं क्यों इतना विस्तार से मैं प्राण की बात क्यों कर रही हूँ और इससे खाने का क्या रिश्ता है। जब हम खाना खाते हैं तो हम मानते हैं ना, जो वेजिटेरियन खाना है वो बेहतर है, खासकर जब हम उपवास करते होंगे या फिर कुछ पूजा इत्यादि ऐसे विषय में हम बोलते हैं कि वेजिटेरियन खाओ, और उसमें भी जितना हो सके फ्रेश खाओ, ऑर्गेनिक खाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि वेजिटेरियन खाने में और जितना फ्रेश है उसमें प्राण की शक्ति ज्यादा होती है। और हम क्योंकि प्राणी है, हमें प्राण की आवश्यकता है, तो हमारे खाने में भी, हमारे भोजन में भी वही हमारे लिए अच्छा है जिसमें प्राण की मात्रा अधिक है। आप एक एप्पल लीजिए और उसे, एक एप्पल को आप फ्रिज में रखिए 3-4 दिन, और एक एप्पल आप ऐसे ही पेड़ से निकाल के फ्रेश लीजिए। ये जो 3-4 दिन पुराना एप्पल है और जो अभी पेड़ से निकाला है, देखने में तो एक ही लगता है ना, दोनों के रंग एक ही होंगे, देखने में तो कुछ अलग नहीं है, लेकिन आप खा के देखिए, स्वाद में थोड़ा फर्क होगा और खाने के बाद जो आपका अनुभव होगा उसमें भी फर्क होगा। क्यों? क्योंकि जो अभी पेड़ से आपने निकाला है उसमें प्राण अभी भी है, लेकिन जो आप फ्रिज में रखते हो, जो फ्रोजन फूड है, उसमें तो प्राण चला गया है। तो खाने में जब स्पेशली हम जब साधना में करते हैं या फिर स्पिरिचुअल एक पाथ में चलते हैं, तो ये बहुत अनिवार्य है कि खाने में प्राण की शक्ति बनाए रखे। लेकिन जब महिलाओं के पीरियड्स होते हैं, आप सबने ये अनुभव आपको हुआ होगा कि आपको बहुत थकान महसूस होगी, है ना, काम करने की इच्छा नहीं होगी। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि शरीर के अंदर प्राण जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड तरीके में हमारे बीज में छुपा हुआ है, और महिलाओं का बीज जो है, जो एग्स हम बोलते हैं, वो पीरियड के टाइम में निकलता है। तो उस एग के साथ बहुत सारा हमारे शरीर में प्राण भी निकलता है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि अरे, आई ऑलमोस्ट फील लाइक आई एम डाइंग, आई हैव नो प्राण लेफ्ट, ऐसे हम बोलते हैं ना, क्योंकि हमारे शरीर से बहुत प्राण निकल रहा है, उस टाइम में बाहर जा रहा है। When we lose the egg, और पुरुषों के लिए भी उनके बीज में छुपा होता है प्राण, and when they lose the semen, then they will feel very exhausted.
महिलाओं के लिए पीरियड के टाइम पे हम अपना एग लूज करते हैं और उसी कारण प्राण के जाने से वी फील टायर्ड। जब किसी वस्तु से या फिर हमारे शरीर से भी जब प्राण निकल जाता है तो हमारा एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हमारे आसपास से हम प्राण को अपने शरीर में लेंगे, हम अब्सॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि हम प्राणी हैं, हमें जीने के लिए प्राण की आवश्यकता है। तब पीरियड के टाइम पे तो प्राण जा रहा है और जाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम उन चीजों को छुए, जैसे कि ताजा फल, तरकारी वगैरह, जब हम उसे छूते हैं तो उनसे प्राण को हम अपने शरीर में अब्सॉर्ब कर लेते हैं। देखने में तो वो एक ही तरह दिखता है, लेकिन आप थोड़ा फोकस कीजिए, वो थोड़ा जल्दी ही स्पॉइल हो जाएगा जब हम पीरियड के टाइम में उसे छूते हैं। और एक बार हमने जब छू लिया तो उसके बाद अगर हमने खाना पका लिया तो वो खाना तो दिखेगा एक ही, लेकिन उसका स्वाद अलग होगा। एकदम सी रेसिपी है लेकिन स्वाद अलग होगा, क्योंकि प्राण की शक्ति तो उससे जा चुका है, वो हमारे अंदर है। और बाकी के जो लोग जिसके लिए हम खाना बनाते हैं वो सब चीजें तो खाते हैं, मैटर खाते हैं, लेकिन प्राण की कमी होगी उसमें। अगर आप ऐसे एक परिवार में हो जहां कोई किसी भी साधना के पथ पर ना हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपके यहाँ कोई रोज ध्यान करता है, पुरुष है, ब्राह्मण फैमिली से हो जहां पर रेगुलर बेसिस पे पूजा करते हैं इत्यादि, तो अगर उनके खाने में प्राण का अंश चला जाएगा तो उस खाने का अर्थ ही नहीं है। तो इसी कारण से पिछले जमाने में हर घर में संध्या वंदन होता था। पुरुष हर रोज 3 समय संध्या करते थे। और जब ऐसी अवस्था के लोग हैं घर में तो हमें खाने में, जब औरतों को पीरियड्स हो रहा है, और बेहतर यही होगा कि वो खाना न पकाए और खाने की चीजों को न छुए, क्योंकि उन चीजों से प्राण की जो शक्ति है वो हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि हम उस टाइम पे उतने शक्तिशाली होते हैं। ये कारण नहीं है कि हम इम्प्योर है, हम में उस टाइम पे इतनी सारी शक्ति है कि हम उस प्राण शक्ति को दूसरे लोगों से, दूसरी चीजों से अपने ही अंदर खींच लेंगे। और इसी कारण से दूसरे को छूना नहीं, अलग से बैठना, ये सभी इसी चीज से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैंने जो अभी कहा आपसे, ये एक लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, इसी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही गहराई से भी आप समझ सकोगे। ठीक है, तो ये एक बात है। अब दूसरी बात, तुलसी के पौधे को क्यों नहीं छूना चाहिए। अब मैंने जो प्राण के बारे में बताया ये तुलसी के पौधे पर भी अप्लाई करता है, लेकिन एक और बात है। जब मैंने कर्नाटक के गांव में ऐसे एक वर्कशॉप कर रही थी महिलाओं के लिए, तब वहां की 2-3 महिलाओं ने मुझे एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ जब छोटी लड़की जब उसकी पहली पीरियड होती है, बड़े धूमधाम से मनाते हैं हमारे यहाँ लड़की की पहली पीरियड। तो दक्षिण भारत के हर राज्य में जब पहला पीरियड होता है तो बड़े जोर से मनाते हैं, मानो कि शादी हो। ये उत्तर भारत में भी था, अब शादी के रिवाज में ये जुड़ गया, अलग से उत्तर भारत में नहीं होता। और इस रिचुअल को उत्तर भारत में गौना बोलते हैं। आप अगर सोचोगे तो आप शायद इस विषय को जान सकोगे। गौना अब एक शादी का एक हिस्सा बन गया है ये। खैर, तो दक्षिण भारत में जब पहला पीरियड होता है, और इस गांव में खासकर, तो वहां की महिलाएं जो है उस लड़की को एक पौधा देते थे और कहते थे कि आप इस पौधे की देखभाल करो, पानी डालो, उससे बात करो, उसे छुओ अपने पीरियड के टाइम पे। और उसके बाद, उस पीरियड के बाद, उस पौधे को महिलाएं ऑब्जर्व करती थी, देखती थी कि क्या वो पौधा ठीक है या मुरझा गया। अगर वो पौधा मुरझा जाता है तो उस लड़की के लिए वो नियम लागू है कि देखो, तुम अपने पीरियड के टाइम पे तुलसी या अन्य पौधों को मत छूना। लेकिन अगर वो पौधा मुरझा नहीं जाता तो वो नियम उस लड़की पर लागू नहीं है। देखिए किस प्रकार करते थे, ऑलमोस्ट एक साइंस एक्सपेरिमेंट है ना। तो लड़की को पौधा देते थे और देखते थे, अरे पौधा मुरझा गया है नहीं है, अगर पौधा मुरझा गया तो मत छूना, अगले पीरियड में और अपना जब भी आपका पीरियड हो मत छूना।
अगर मुरझा नहीं गया चलो ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक है, तुम छू सकती हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपना खुद का अनुभव आपको बताऊंगी। जब भी मैंने अपने घर में एक तुलसी का पौधा रखा, पीरियड के टाइम पे अगर कोई और नहीं है उसे पानी देने के लिए और मैंने 2 बार पानी दे भी दिया, तो बस तीसरे ही दिन वो मुरझा जाता है। इसीलिए मैंने अब तो तुलसी का पौधा रखना ही बंद कर दिया। लेकिन मेरी सहेली जो है वो पीरियड के टाइम पे पानी भी देती है, उसके पास बैठती है, उसे छूती है, सब करती है, लेकिन पौधे को कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों है? और उसे जानने के लिए हमारा अलग स्लाइड है, और वो है हमारी प्रकृति। हम सब एक ना एक प्रकृति के बने हैं, और यही आयुर्वेद का आधार है। मैं जो हूं, मैं पित्त प्रकृति की हूं, यानी मेरे शरीर के भीतर अग्नि का तत्व जो है वो बहुत अधिक है। यानी पीरियड के टाइम पे मैं तो साधारण तौर पे भी मेरे शरीर के अंदर अग्नि का तत्व ज्यादा है। अग्नि का तत्व यानी हीट, उष्ण की जो गुण है वो मुझ में अधिक है। और पीरियड के टाइम पे पित्त जो है वो नेचुरली थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, तो मुझ में और मुझसे जो उष्ण की जो गुण है वो निकल आती है। और तुलसी एक ऐसा सेंसिटिव पौधा है जो उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नाम की एक प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन मेरी जो सहेली है वो कफ प्रकृति की है, थोड़ी छोटी है, थोड़ी मोटी है, क्योंकि उसमें पृथ्वी और जल का अंश ज्यादा है। कफ प्रकृति यानी पृथ्वी और जल, यानी बहुत शीत गुण की है। शीत यानी कूलिंग प्रॉपर्टी है। जो पीरियड के टाइम पे जो पित्त का, अग्नि का गुण बढ़ भी जाता है, फिर भी कफ प्रकृति की महिलाएं जो है, अगर वो तुलसी के पौधे को छूती है तो उस पौधे को कुछ नहीं होता। वात प्रकृति, इसमें क्या है? अब वात जो है वायु और आकाश से जुड़ा हुआ है। पीरियड के टाइम पे वात और पित्त ये दोनों ही नॉर्मल से थोड़ा अधिक ही रहता है। तो वात प्रकृति की महिलाएं भी अगर पौधे को छूती है तो वात के साथ क्योंकि पित्त भी बढ़ जाता है तो वो पौधा मुरझाने की संभावना है। पित्त प्रकृति की महिलाएं अगर छूती है तो डेफिनेटली पौधा मुरझा जाता है। कफ प्रकृति की छूती है तो नहीं होता, वात की शायद हो सकता है। तो इस प्रकार देखिए नियम बनाए गए थे। अब हर महिला को तो ये शायद वो नहीं जान पाई थी कि उसकी प्रकृति कौन सी है, तो सबके लिए एक ही जैसे नियम बनाया, क्योंकि पीरियड के टाइम पे पित्त तो ज्यादा रहता ही है, तो अच्छा यही होगा कि आप तुलसी के पौधे को छुओ मत। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस तुलसी के पौधे के साथ बना है। तो ये 100% अंधविश्वास नहीं है, ये तो मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ। और आगे के दिनों में आप भी ऑब्जर्व कीजिए, आप ऑब्जर्व कीजिए कि किस प्रकार ये चीजें आपके छूने से बदलती है, और आपकी स्वयं की प्रकृति क्या हो सकती है इसके बारे में भी सोचिए। ये चित्र देखने से ही आपको कुछ चीजें पता चल जाती है। वात प्रकृति की जो महिलाएं हैं वो थोड़ा पतले से होते हैं, वो बहुत जल्दी उनको दे डोंट पुट ऑन वेट वेरी इजिली, बहुत ड्राई स्किन, क्योंकि वायु और आकाश है ना, तो जो वायु के जो गुण है उनके शरीर में है, उनका स्किन काफी ड्राई होता है, उनके बाल बहुत ड्राई और ब्रिटल होते हैं, और ये वायु की जैसे होते हैं, यानी हमेशा तेजी से बहना। उनके बात करने का तरीका भी ऐसा होता है, बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं और कहीं एक जगह नहीं ठहरते, हमेशा एक जगह से एक जगह चलते जाते हैं। दे लव ट्रैवलिंग, वेरी क्रिएटिव वुमेन, और हमेशा थोड़ा रेस्टलेस रहते हैं। हमेशा उनके हाथ में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, अपने पैर ऐसे ऊपर नीचे कर, वेरी रेस्टलेस, क्योंकि वायु का गुण उनमें है। और उनके पीरियड भी अलग होते हैं। अगर आप वात प्रकृति के हो तो आपके खून का रंग जो है वो डार्क ब्राउनिश होता है, और खून का बहना थोड़ा कम होता है, 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन तक रहेगा। और पीरियड के टाइम पे आपको क्रैम्प्स का अनुभव ज्यादा होगा, आपको थोड़ा एक भय, एंजाइटी, ऐसे एक्सप्रेशन ज्यादा होंगे अगर आप वात प्रकृति के हो। अगर आप पित्त प्रकृति के मेरे तरह हो
तो पहली बात ये है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा क्योंकि आप अग्नि के तत्व से बने हो, तो आप में हमेशा वो अग्नि की गर्मी रहती है है ना। तो आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होंगे, स्किन बहुत सेंसिटिव होगा। आप मीडियम बिल्ड के हो, आप उतनी जल्दी आप वेट पुट ऑन नहीं करोगे और उतने पतले भी नहीं होगे, थोड़ा मीडियम एथलेटिक बिल्ड के हो। पीरियड जब नजदीक आता है तो लक्षण पहला यही है कि आप गुस्सा करोगे, किसी के साथ लड़ोगे आप और तब आपको पता चलेगा कि हाँ पीरियड आने वाला है तो ये सब पित्त प्रकृति वालों के साथ होता है। अगर आप पित्त प्रकृति के हो तो आपके खून का रंग जो है वो बिल्कुल ब्राइट रेड होगा, ब्राइट रेड। वात प्रकृति के थोड़ा डार्क ब्राउनिश होगा, पित्त का ब्राइट रेड। और पीरियड का फ्लो जो है वो थोड़ा लंबा होगा। सबसे अधिक जो 5 से 7 दिन की अवधि का जो बहाव है पीरियड ब्लड का, वो पित्त प्रकृति की महिलाओं में देखते हैं। और हेवी ब्लीडिंग, अनीमिया, ये सब चांसेस पित्त प्रकृति महिलाओं में अधिकतर हम देख सकते हैं। तीसरा है कफ, जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा छोटे, उनके हाइट थोड़ा कम होगा, थोड़ा प्लम्प से रहेंगे, बड़े क्यूट से होते हैं और उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी होती है, बहुत फ्रेंडली नेचर। हम जो पित्त प्रकृति के, हमें तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। वात प्रकृति वाली औरतों को बहुत रेस्टलेस होते हैं वो, लेकिन कफ प्रकृति की जो है वो तो बेस्ट फ्रेंड होती है आपकी। हमेशा उनका माइंड कूल काम रहती है, सबके साथ एकदम से वो फ्रेंडली रहती है। तो कफ प्रकृति की महिलाएं दे हैव द बेस्ट फर्टिलिटी, क्योंकि उनके बॉडी में एक स्ट्रेंथ है, एक एंड्योरेंस है, बहुत स्ट्रांग होती है वो लोग। और फर्टिलिटी बहुत बढ़िया है उनमें। और उनके ब्लीडिंग, उनके खून का रंग जो है वो थोड़ा लाइट रेड होगा, ऑलमोस्ट पिंक जैसे। यहाँ ब्राइट रेड, यहाँ ब्राउनिश, यहाँ लाइट पिंक। और मीडियम लेंथ पीरियड का फ्लो होता है। लेकिन ये लोग खाना बहुत पसंद करते हैं और काफी लेजी है, तो बहुत जंक फूड जो लोग खाते हैं तो वहां उनके कफ दोष में थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है और उसके कारण उनको वॉमिटिंग हो सकता है पीरियड के टाइम पे, नॉसिया, वॉमिटिंग, वो सभी चीजें कफ प्रकृति की महिलाओं को है। बहुत सारी चीजें हम सिर्फ ये वात, पित्त और कफ जानने से हम बहुत सारी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसको मैंने डिटेल में अपने किताब में लिखा है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो। आगे जाने से पहले और कितना समय बचा है रोहिणी बात करने के लिए, मुझे वो भी बता दो। Ma'am, we are having that time. You can having speak. time? Thank Yes, you. ma'am. Okay. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि पंच प्राण या पंच वायु जो हमारे शरीर के भीतर है, इसे समझे बिना हम ये मंदिर के नियम को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या है ये पंच प्राण या पंच वायु? 5 तरह के प्राण या 5 तरह के वायु है शरीर के भीतर। आप इस डायग्राम में देख सकते हो इनके डायरेक्शंस क्या क्या है। पहला है प्राण। प्राण जो है हमारे इनहलेशन, हम जब एयर को अंदर लेते हैं, हम ब्रेथ अंदर लेते हैं, तो जो फोर्स उसमें मदद करता है वो है प्राण। प्राण यानी बड़ा सा जो प्राण है जिसके बारे में कहा, उसका भी नाम प्राण है। और उसके अंदर एक सब टाइप ऑफ प्राण, उसे भी हम प्राण वायु भी कहते हैं। तो आपको कॉन्टेक्स्ट लेके समझना है कि मैं कौन से प्राण के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इट इज द प्राण वायु विच इज सब टाइप ऑफ द ओवरऑल प्राण और ओवरऑल वात। तो ये प्राण जो है इसका डायरेक्शन इज लाइक दिस, इनसाइड, इनवर्ड्स, ठीक है। और दूसरा है उदान वायु। प्राण वायु इनहेलेशन में मदद करता है। जब हम खाना मुंह में डालते हैं तो हम स्वॉलो कैसे करते हैं, निगलते कैसे हैं, वो निगलने की प्रक्रिया में जो चीज मदद करती है वो है प्राणवायु। इसके बिना हम निगल नहीं पाएंगे खाने को, हम ब्रेथ को अंदर नहीं ले पाएंगे। और उदान जो है उसके ऑपोजिट है, अंदर से बाहर, यानी एक्सलेशन। जब हम ब्रेथ को बाहर छोड़ते हैं, जब हम बात करते हैं, जब हम गाना गाते हैं, वो सब उदान वायु के कारण है। आप सबने बचपन में ये सुना होगा, खाना खाते वक्त बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि खाने को अगर नीचे निगलना है, अगर नीचे जाना है, तो प्राण को एक्टिव होना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपको बात करना है तो उदान वायु एक्टिव हो जाता है, और ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस है। एक बाहर से अंदर जाता है और दूसरा अंदर से बाहर निकलता है। अगर एक ही समय इन दोनों ऑपोजिट फोर्सेस को एक्टिवेट करोगे तब देन यू विल चोक। इसीलिए खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्राण और उदान का हो गया। व्यान जो है ये प्राणवायु को शरीर के हर जगह ले जाता है, शरीर के हर कोने तक जो फोर्स जो प्राण को ले जाता है, सर्कुलेटरी फोर्स जो है वो है व्यान वायु। चौथा जो है समान वायु। समान जो है वो पेट के इस हिस्से में ऐसे गोल गोल घूमता है और इसका काम डाइजेशन में है, जीर्ण प्रक्रिया में। जब हम कुछ खाते हैं उसका अगर डाइजेशन प्रोसेस शुरू होना है तब समान वायु को ऐसे गोल गोल घूमना होगा, ऐसे एक्टिवेट होना होगा। हम अपने देश में देखते हैं जब हम पेट भर खाना खा लेते हैं तो क्या करते हैं, पेट को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, है ना। क्यों गोल घुमाते, क्यों ऐसे नहीं करते हम, क्यों हम सिर में नहीं करते जब पेट पूरा होता है, क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली when we are moving our hands on the stomach we are triggering समान वायु। हम अपने एक्शन से बोल रहे हैं अच्छा पेट तो भर गया, समान वायु शुरू हो जाओ, अब डाइजेशन चालू करो, और हम पेट को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। देखिए जाने अनजाने में भी हम इन चीजों से इंटरैक्शन कर रहे हैं, हमारे कल्चर में ही है। और एक और बात, खाना खाते वक्त किस प्रकार हाथ से खाना चाहिए, ऐसे पांचों उंगलियां एक साथ होकर, है ना। जब हम 5 उंगलियों को एक साथ करते हैं ये एक्चुअली एक मुद्रा है, समान मुद्रा, जिसमें समान वायु एक्टिव होता है। अगर आप ऐसे 2 उंगली ऊपर करोगे ना, ये अपान मुद्रा है। अपान जो है जो नीचे के चीजों को नीचे भेजता है, हमारे एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस। सो खाते वक्त अगर आप ऐसे खाओगे तो डाइजेशन के बजाय एक्सक्रीटरी प्रोसेस शुरू होगा और अगर आप ऐसे खाओगे तो वो एक अलग मुद्रा बन गया, उदान प्राण शुरू हो गया। अगर आप ऐसे खाओगे तो व्यान शुरू हो जाता है। तो खाते वक्त 5 उंगलियों को इसलिए अलग साथ में लाना चाहिए क्योंकि तभी वो समान मुद्रा बनता है। बचपन में जब मैं खाती थी तो एक उंगली ऐसे उठ जाता था और कोई ना कोई आके ऐसे मार देते थे। ऐसे नहीं खाते 5 उंगलियों को, फिर धीरे से एक और ऐसा उठता था, फिर मारते थे। मैं कभी समझ नहीं पाती थी कि क्यों ऐसे 5 उंगलियों से खाना चाहिए, लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ क्योंकि एक एक उंगली जब उठता है वो एक एक मुद्रा है और एक एक मुद्रे से शरीर के अलग अलग वायु जो है वो एक्टिवेट होता है ना। तो कितनी बड़ी बात है ना। और इतनी जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं लेकिन हम खुद नहीं जानते कि ऐसा क्यों करते हैं, है ना। अच्छा, तो वो हो गया समान वायु का। अब देखिए अपान वायु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब वी ऑल अंडरस्टैंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है ना। जब हम कुछ बॉल फेंकते हैं ऊपर तो वो नीचे आता है। हम सब क्यों उड़ नहीं रहे, हम सब बैठे क्यों हैं? क्योंकि there is a gravitational pull which is keeping us grounded. Now, if there is a gravitational pull outside our body, isn't it obvious that inside our body also there should be a gravitational force? जो चीजें नीचे की ओर जानी चाहिए वो कौन सा शरीर के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसे नीचे की ओर रखती है? और वो फोर्स है अपान वायु। ये हमारे शरीर के भीतर के ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसी के कारण मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन, हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है ये पूरा अपान वायु के से ही गवर्न होता है। और देखिए इसका दिक कैसा है, इसका डायरेक्शन कैसा है, हमेशा नीचे की ओर। इस अपान वायु के डायरेक्शन में अगर कोई सा भी बदलाव आ गया, अगर ये ब्लॉक हो गया या अगर ऊपर की ओर टर्न हो गया तो हमारे पीरियड्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। अब क्या होता है जब हम मंदिर जाते हैं तो कहा जाता है कि काली पेट ही जाना है ना। सुबह स्नान करके टॉयलेट वगैरह जाके उसके बाद खाली पेट ही मंदिर में आइडियली खाली पेट जाना है। क्यों? क्योंकि अगर पेट भर हम
खाकर जाएंगे तो समान वायु तो अपना काम शुरू कर देगा। जब हम मंदिर जाते हैं, और आगे के स्लाइड्स में आप देखोगे, मंदिर का हमारे शरीर पर कुछ इस प्रकार असर पड़ता है कि वो मंदिर जो है हमारे सारे वायु को ऊपर की ओर खींच लेता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ऊपरी चक्र है। चक्र का विषय अभी तक आया नहीं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि आप जब एक मंदिर में प्रवेश करोगे, ये सभी वायु जो है वो अलग से ऊपर की ओर उठेंगे, और अगर पेट में खाना है उस समय तो आपको उल्टी आएगी या फिर लूज मोशन, क्योंकि डाइजेशन नहीं होगा। और अगर उस टाइम पे आपका पीरियड चल रहा हो, यानी अपान वायु ऐसे नीचे जा रहा हो, और उस टाइम पे अगर आप मंदिर प्रवेश करोगे तो यही अपान वायु ऊपर की ओर जाएगा, और आपको, अगर आप सेंसिटिव हो तो आपको इमीडिएटली एक सिवियर क्रैम्पिंग सेंसेशन का अनुभव होगा। और अगर आप ये जान नहीं सके और बार बार मंदिर गए तो अपान वायु आगे के दिनों में पूरा टर्न होगा और उससे सिवियर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होंगे। उसके बारे में अभी समय तो कम है तो ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मेरे किताब में पढ़ सकते हो। लेकिन यही कारण है कि महिलाओं से कहा जाता है कि पीरियड के टाइम पे मंदिर मत जाओ। ठीक है, तो एक और लेवल पे मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करूंगी चक्रों के विज्ञान के द्वारा। ये तो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है। ये जो लाल रंग का आप देख रहे हो, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है चक्रों की। सी जस्ट लाइक वी हैव नर्व्स एंड प्लेक्सस पॉइंट्स जो आंखों को दिखाई देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म विज्ञान में अगर हम देखें तो नाड़ी और चक्र है जो आंखों को दिखाई नहीं देते। लेकिन ये चक्र जो है, हर एक चक्र में 3 से अधिक नाड़ी जुड़े हुए हैं, और जब चक्र की चालन ठीक से होता है तो नाड़ियों के द्वारा वो चक्र जिस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है वो ऑर्गन काम करने लग जाता है। तो शरीर में 100 से अधिक चक्र है, अराउंड 108 चक्र है। उनमें से 6 ऐसे, और 7वां जो ऊपर है वो है सहस्रार। उसके अलावा भी 6 ऐसे चक्र है जिसे हम मेन या षट चक्र मानते हैं। और इन 6 चक्रों का अलाइनमेंट हमारे रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड से अलाइन हुआ है, और हर एक चक्र जो है शरीर के एक एक ऑर्गन को इन्फ्लुएंस करता है। तो हम एक झलक देखते हैं इसका क्या क्या है इसमें, और इससे पीरियड का क्या ताल्लुक है। सबसे नीचे का जो है मूलाधार चक्र बोलते हैं, मूलाधार चक्र, और पुरुषों में उनके टेस्टिस और महिलाओं में हमारे ओवरीज के नीचे हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के आसपास रहता है मूलाधार चक्र। उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे एक्सक्रीटरी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है मूलाधार। उसके ऊपर है स्वादिष्ठान चक्र जो डायरेक्टली हमारे ओवरीज को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हमारे पीरियड ठीक नहीं हो रहा हो, अगर आप टेस्ट करोगे तो कहोगे, डॉक्टर्स कहेंगे कि ओवरीज में प्रॉब्लम है, एग्स निकल नहीं आ रहा, पीसीओडी एटसेट्रा, है ना। अगर आप इसी चीज को सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखोगे तो उसका अर्थ ये होगा कि आपके स्वादिष्ठान चक्र में प्राण की कमी है। इट इज नॉट हैविंग इनफ प्राण, सो इट इज नॉट एबल टू मेक द ओवरीज फंक्शन। ठीक है, तो अगर स्वादिष्ठान चक्र को आपने बुलंद बना दिया, उसमें प्राण से आपने उसे भर दिया, तो नेचुरली ऑटोमेटिकली ओवरीज भी काम करने लग जाएंगे। ठीक है, और तीसरा जो है मणिपुर चक्र। मणिपुर जो है हमारे नेवल, हमारे बेली रीजन में पड़ता है, और उसका इन्फ्लुएंस पैंक्रियास और एड्रिनल ग्लैंड्स में पड़ता है। अनाहत चक्र जो हमारे हृदय के उस भाग में हमारे हार्ट को इन्फ्लुएंस करता है और थाइमस ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करता है। विशुद्धि हमारे जो कंठ के इस नीचे के हिस्से में, हमारे थ्रोट में है, विशुद्धि बोलते हैं, वो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज्ञा चक्र जो हमारे आंखों के बीच के हिस्से में, जिसे हम थर्ड आई बोलते हैं, है ना, तो वो आज्ञा चक्र हमारे पिट्यूटरी नाम की एक ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करते हैं।
और सबसे ऊपर सहस्रार, जो जिसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें उनका सहस्रार चक्र खुला होता है, वो पिनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। अब इन सब का मंदिर से और हमारे पीरियड से क्या संबंध है, ये हम आगे देखेंगे। आगम शास्त्र के किताबों में ये साफ लिखा गया है कि एक मंदिर, जिसे हम संस्कृत में देवस्थान बोलते हैं, यानी देवताओं के निवास करने का स्थान, देवस्थान। सो जो देवस्थान है वो खुद एक मनुष्य के शरीर के प्रकार रचा गया है, और उस मनुष्य को हम वास्तु पुरुष बोलते हैं। और इस चित्र में, जो एक काफी पुराना चित्र है आगम शास्त्र के किताब से, इसे डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। देखो, एक मंदिर है और ये वास्तु पुरुष है। हम ये खासकर दक्षिण भारत के मंदिर में देखते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों का स्टाइल थोड़ा अलग है, लेकिन दक्षिण भारत में ये हम खासकर ऐसे ही देखते हैं। जो वास्तु पुरुष के पैर है वो मंदिर का प्रवेश द्वार है। जो वास्तु पुरुष के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो मंदिर के का ध्वज स्तंभ है। जो वास्तु पुरुष के ऐसे ही एक एक उसके शरीर के भाग को मंदिर के एक एक भाग से हम कनेक्ट करते हैं, और उसी प्रकार से मंदिर रचा गया है। और अंत में जो आज्ञा चक्र का जगह है वही है गर्भगृह। जहां विग्रह होता है वो गर्भगृह हमारे आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है। और ये देखिए, ये ऊपर ये चित्र है चक्रों का, और जिस प्रकार ये अलाइन होता है, यानी हर एक वो मंदिर, हर एक वो देवस्थान जहां प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया हो चुका हो, वो मंदिर हमारे शरीर के ऊपर उसका अनुभव रहता है। और किस प्रकार रहता है? वो चक्रों के द्वारा रहता है। हमने सुना होगा, इस मंदिर में जाने से जिन लोगों को बच्चा नहीं होता उनको बच्चा हो सकता है। फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ देवी मंदिर सुने होंगे आपने। वो सभी मंदिर जो फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है वो हमारे स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र को मजबूत करता है, उसमें प्राण की शक्ति भर देती है, और उस कारण हमारे रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स कम होते हैं। गुवाहाटी में माँ कामाख्या का मंदिर है। वहां जाने से बोलते हैं कि अगर किसी को कोई भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स या पीरियड के प्रॉब्लम्स है वो चला जाता है, वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है। वैसे ही कुछ ऐसे मंदिर हैं जो मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु में एक मंदिर है जहां बोलते हैं कि वहां जाओ तो आपको अगर डायबिटीज है तो वो डायबिटीज का प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मणिपुर चक्र को आप एनर्जाइज प्राण से भर दोगे तो वो पैंक्रियास, जिसके कारण हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन जो है रेगुलेट होता है, उसे रेगुलेट होता है। तो देखिए, जिस प्रकार मंदिर बने थे वो हमारे पहले आरोग्य केंद्र थे, और इसीलिए वो हर गांव में था, क्योंकि आप बीमार होने से पहले ही आपको बचा देते थे। तो आज भी दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश के गांव में हर रोज महिलाएं जब पीरियड नहीं होती होगी, दिन की शुरुआत ही देवी के मंदिर से करती है। दिन की शुरुआत पहले नहाओ, अपने पेट साफ करो, देवी के मंदिर जाओ, प्रसाद लो, और उसके बाद सब काम। और उनको पीरियड्स के प्रॉब्लम होगी भी नहीं, क्योंकि उनके स्वादिष्ठान चक्र जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब शबरीमला में क्या ऐसा हो रहा है, क्यों हमें जाना नहीं चाहिए? शबरीमला जो है वो सीधा आज्ञा चक्र को ही ट्रिगर करता है। आज्ञा चक्र जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड जब एक्टिवेट होता है तो शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जो है वो अधिक बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन इट इज अ मेल हार्मोन, सो इट इज वेरी गुड फॉर मेन। पुरुषों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। हमारे लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत कम चाहिए हमें, और ये सिर्फ ओव्यूलेशन के टाइम में थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन चाहिए। जब हमें पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, हमारे ओवरीज का काम बनता है कि उस टेस्टोस्टेरोन को हमारे हार्मोन यानी ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करे।
तो जब भी नेचुरली पिट्यूटरी से टेस्टोस्टेरोन आता है तो हमारे ओवरीज उसे कन्वर्ट करता है। लेकिन आप सोचिए, आप शबरीमला जैसे मंदिर जाओगे जहां सिर्फ आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है, यानी टेस्टोस्टेरोन आता ही रहता है कंटिन्यूअसली, लेकिन स्वादिष्ठान चक्र जो है वो पीछे पड़ जाता है, इट फॉल्स बिहाइंड। उतना टेस्टोस्टेरोन वो कन्वर्ट नहीं कर पाती। और अगर आप देवी के मंदिर में नहीं जाओगे या कोई ऐसे मंदिर जहां स्वादिष्ठान को इसके इक्वली आप एक्टिवेट नहीं करोगे, तो ओवरीज जो है वो डिसफंक्शनल हो जाएगा और आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक हो जाएगी और मेल सिम्टम्स ज्यादा दिखने लग जाएंगे, पीसीओडी भी हो सकता है। तो जब कोई मंदिर के बारे में नियम बनाते हैं तो ये जानना है हमें कि मंदिर जो है इट डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर बॉडी। कोई भी मोक्षधाम, सिर्फ शबरीमला नहीं, कोई भी मोक्षधाम, कैलाश, काशी, शिव जी के मंदिर, वो सभी आज्ञा चक्र के ऊपर काम करता है और इसीलिए ट्रेडिशनली विमेन आर नॉट एनकरेज टू गो देयर, विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। हमारे लिए जो मंदिर बेहतर है, बने हैं, वो देवी के मंदिर है, श्री विष्णु के भी कुछ मंदिर है, लेकिन मोक्ष धाम उसी उम्र के बाद जाना चाहिए जहां हमारे पीरियड्स नेचुरली बंद हो चुके हैं। तो ये एक सिर्फ झलक था। इसके बारे में आपको अगर अधिक जानना है तो 2 किताबें हैं मेरी, एक वुमेन एंड शबरीमला जो शबरीमला के इस पूरी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करता है, और दूसरा है ऋतु विद्या। I will stop, I will pause now. Back to you, Rohini. I hope I did not take too much time, and I look forward to whatever questions that the audience might have. I will stop the screen sharing now. Thank you. Thank you so much, Senaji. I mean, I have to say that this has been, I'm getting so many text messages saying that this is one of the best out of the lot, and what a way to, finish our series of webinars with such a bang, and so much of scholarship and so much of clarity. And I cannot tell you how important this must be in my students, especially girl students' lives. They'll realize it later in their lives when they look back and say, yes, I heard Senu ma'am, and that's how this is happening. Another thing is that, normally when speakers speak, the initial attendance is quite high, but slowly as the, talk progresses, the number of attendees keeps decreasing, and it's just the reversal today. Right? So that's a huge compliment for what you're coming with and the kind of scholarship that you came with. बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस टॉक के लिए, तहे दिल से। मेरे ख्याल से मेरे सारे ही गर्ल स्टूडेंट्स के लिए ये इतना उपयोगी होगा कि उनको अभी शायद उसका अंदाजा कम है। बाद में जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको समझ में आएगा कि कितनी साइंस छुपी है हमारे कल्चर में, और इस कल्चर को अगर आप बचाए रखेंगे, आपके हाथ में है। हम और सीनू जी और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि आप उस चीज को बचा के रखें, क्योंकि ये खत्म नहीं होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ मैनुअल विथ यू, दैट डजंट मीन दैट द मशीन डिडंट वर्क। ओके, बीच में हमारे पास इतने सारे मैनुअल्स खत्म हो गए, जो बताने वाले लोग थे वो खत्म हो गए, और अभी सीनू जी जैसे लोग हैं उनका पूरा फायदा उठाइए। इस वेबिनार के बाद भी कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कांटेक्ट करिए और बात करिए, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। Thank you once again, Synergy, from all of us. Thank you, my pleasure. Rohini, over to you for the question answer session. Yes, ma'am. First of all, I'd like to say thank you so much, ma'am, for the amazing and thoughtful session. And Bhanu ma'am, I would like to inform you that Sheenu ma'am accepted our proposal to speak in bilingual language, as her language is not Hindi. She's from Kannada and Bangalore, and her language is Kannada and Malayalam. Ji, you were beautiful. I don't think there can be, a better Hindi speaker than you. By the way, I am also South Indian and I come from Andhra. Wonderful, wonderful, wonderful. I can see that we are doing wonders with Hindi, and it's such a pleasure to hear Hindi and speak Hindi.
I So love thank you. speaking Hindi. मुझे ज़्यादा too. मौका नहीं मिलता हिंदी में बात करने की, but I love speaking in Hindi. Absolutely, you echo my sentiments. I too speak. I teach English literature, but then I speak Hindi out of passion and love for that language. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Now I would like to call Shruti Raj for the question answer session. Over to you, Shruti. Thank you, Rohini. A very good afternoon, ma'am. It's an immense pleasure to have you here with us today. I would like to ask a thread of questions with you. And my first question to you is, ma'am, there is also the idea of shame that is associated with periods, particularly in rural India. Women are discouraged from complaining about menstrual pain. So how do we know that women claim to not experience pain are just keeping silent because they believe it's not proper to talk about it? This question has been asked by a student of MA final year. Thank you, ma'am. So thank you for the question. I want to tell you, I have worked across rural India, at least 10 states. I have traveled and interacted with rural girls and women. Of course, South India, all South Indian states, but also Bihar, Jharkhand, Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland. I have interacted with not just rural women, tribal women. In Jharkhand, these were Naxal hit areas. And I want to tell you that there is a difference between shame and shyness. Indian women feel shy to talk about menstruation. They don't feel shame. This word shame is an imposition by the Westerners who think that we have taboos. Just like our cultural practices have a science and they're not taboo, similarly, our emotions are not shame, it is shyness. It's important to make this distinction because in Eastern India, in South India, we celebrate. Even Ma Kamakhya's menstruation is a function, it's a festival. 25 lakh people show up when Ma Kamakhya menstruates. We are not a country that associates menstruation with shame. That is a wrong idea. Those who have never stepped on ground and spoken to our rural women say this. Media says this because they use it as a tool to sell some products. It is not the truth of the country. Our girls and our women feel shy. They don't feel shame. Shame is not our culture. So that's the first and foremost thing that you must understand. Shame is felt by the Western women because they look at menstruation as an inconvenience. They look at it as something that comes in the way of their life. They feel if I don't want to have children, I can just have tablets and not bleed. That is shame. For us, menstruation is about our overall health. You ask the rural women, they will hardly talk about menstruation resulting in childbirth. They will say you need it for your overall health. That's how they will talk. You can never have that knowledge if menstruation was associated with shame. This is something as young girls you must know that the way our culture is interpreted, it is a Western lens. The word taboo does not exist in our Indian languages. कुछ है उसके equivalent कुछ शब्द है. हम सूतक बोलते हैं. कन्नड़ा में सूतका बोलते हैं, हिंदी में सूतक बोलते हैं. उसका अर्थ क्या है? ये एक समय है जब हमें रेस्ट लेनी चाहिए. कुछ नियम बने गए हैं. हम इसके बारे में नेगेटिव दृष्टिकोण से एक्चुअली नहीं देखते. So the first and foremost thing is to change your lens. हमारा एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न हुआ है, आपका भी और मेरा भी. उसे बाजू में रखिए और आपके घर में आपके दादी नानी से बात कीजिए, तब आप समझोगे, इस विषय को बहुत अलग तरीके से समझोगे. So I don't think we have shame. We have a huge gap in understanding our culture. Our traditions, our practices, our sciences have been lost. We need to revive that. And the first way is by celebrating the period. दक्षिण भारत में हर घर में, हर हिंदू घर में जब लड़की का पीरियड होता है तो सिर्फ स्त्रियां ही नहीं, वहां के पुरुष भी शामिल है उसमें. Bhanumati ji will tell you how in Andhra Pradesh we celebrate it like a marriage. The whole village is invited. Where is the question of shame? And when the conversation is so open, girls never hesitate to talk about it. They never hesitate to share. They share with their brothers, they share with their father. When the girl gets a period, when the woman of the house gets a period, the boys and the men take over the household chores because she gets to take rest.
So she will never feel awkward about talking. We have had this gap in North India, and we have to bring this back. You have to bring back the celebration of period through Gana. Involve the men in it. And then you will stop feeling awkward to talk about period pain or any other problem. That is the real reason. That is the real answer to it. I hope I answered it. Thank you so much, ma'am, for such an insightful answer. Now, my second question to you is, ma'am, what are the solutions or treatment to manage Vata imbalance? This question has been asked by Palak Singh, a student of MA final year. So any sort of problem, when you're asking me about treatment, I will tell you, do a Nadi Pariksha through a Ayurveda physician. I am not a medical person, okay? I have explained many things in my book. If you read it and study it, you will understand many things. So based on the type of dosha, there are specific food, there are specific rules, there are specific do's and don'ts. You can follow all those things as I have written. If it is a serious disorder, then please take help of an Ayurveda physician. It is too broad a subject to discuss in this discussion. Vata is about air, the quality guna of Vayu and Akash. So anything which aggravates Vata is that which has the quality of Vayu and Akash, meaning anything very cold, anything very dry, they will all aggravate Vayu. So you should have the opposite. You should have warm food. So moong dal ki khichdi, period ke time mein moong dal ki khichdi bina namak ke, that is the best food. Have it 3 times. You will not have stomach pains. You will have a complete detox. You will feel very rested. Bina masale ke, bina mirchi ke, bina namak ke, moong dal ki khichdi. So that's the best food for Vata. So like this, there are many such things. You can read my book for more information. But if it is a disorder, then please seek an Ayurveda consultation. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your answer. Now I would like to call Sarvat to further continue with the question and answer session of the chat box. Over to you, Sarvat. Thank you, Shruti, and thank you, ma'am, for your amazing and wonderful answer. Now I would like to add some third up question. My first question is that, can a single being have 2 types of doshas or the combination of 2 types of dosha? Ma'am, this question is asked by Aditi Singh from MA final year. Over to you, ma'am. Yes, all of us have more than one dosha. Very few of us will have only one or all 3. Mostly we have 2. So we will be Vat and Pitta, or Pitta and Kapha, or Vat and Kapha. So most of us are like that. So I am around 90% Pitta and little bit of Vat. That is very rare actually. Most people will be 40-45, 40-60 or 50-50. Mine is Agni ka gun thoda zyada hai mujh mein. So most of you will be combination of at least 2 doshas. And Prakriti is that. So when you go to an Ayurveda doctor, they will do Nadi Pariksha, they will read the pulse, and they will tell you what is your Prakriti, how much of Vata, how much of Pitta, how much of Kapha. We have all 3 actually. All of us have all 3, but the dominance will be of 1, and then the second, and then the third. So you could be Pitta Vat Prakriti, meaning Pitta is highest in you, followed by Vat, and little bit of Kapha is there. If they say you are a Kapha Vat Prakriti, Kapha is maximum in you, Kapha ke guna aap mein zyada dikh jayenge. Next hoga Vat ka, aur sabse kam hoga Pitta ka. So like this, we all have all 3 doshas in differing quantities. Thank you, ma'am. Now I would like to add one more question. Ma'am, through your talk, I observed that subtle science or Shooshma Vidya is basic of all science like philosophy, psychology, and biology. Can we say that where all the country is claiming about they have discovered a new elements while we have 8,000 years back? Ma'am, can you please throw light on it? Absolutely. See, in modern science, this topic will come under quantum physics. It's a very advanced physics, quantum physics. And in quantum physics is what they talk about, similar things as what we talk about, Pancha Mahabhut. But even then, it is not the same. They don't talk about the guna. They don't talk about Agni Tattva. They don't talk about Vayu Tattva. They don't talk, but they will talk about electrons, protons, neutrons. It is closer to that. When
physics has gone to quantum level, mathematics has also gone to quantum level, but biology is far behind and we don't have quantum biology. Modern medicine, gynecology and all branches of modern medicine start from the atomic model, Newton's atomic model. So they understand atom as the basic building block. But physics itself has said more than atom, there is something smaller. There is subatomic particle, there are waves. But biology does not recognize that. In Ayurveda, we recognize quantum biology. So if you have to use a term, that is what it is. We had Sushruta and others who were surgeons. So we did all that. तो वो सब हो गया हमारे लिए. वो तब है, obviously. लेकिन उससे अधिक, उससे गहरा, we have Sukshma Vignan, we have quantum biology. When modern science starts to talk about nanomedicine, nanoparticles, that's when they are entering the realm of Ayurveda and Chakra and Tantra, and they're far off from that. Because you cannot understand that through external labs. उसे अपने अनुभव से, ध्यान से, तपस से, साधना से समझना होगा. And until they can employ those methods, they will have very little success in that direction. So quantum biology is the term you are looking for. Thank you, ma'am. Now my other question is, ma'am, girls who are in their fertility age should avoid all the temples. This question is asked by Aditi. Not all, whichever is the Moksha Dham. Can you mute your background, please? Yeah, thank you. So a Moksha Dham is a temple like Shabrimala. Everybody knows it is a Moksha Dham. Shivji ke mandir, Kailash, Kedar, Kashi, all these are places where typically our grandparents only used to go, correct? So women used to go only after menopause because they have an effect on your reproductive health. So those kind of temples, when you are in menstruating age, you must avoid. You can go to all the other temples when you don't have your period. Don't go during your period. When you don't have your period, you can visit all other temples which are not a Moksha Dham. But Moksha Dhams, you keep it for after menopause. That is the rule. Thank you, ma'am, for your insightful knowledge and for answering very well. It has cleared a lot of doubt in our mind. We are privileged that we have got an opportunity to hear you, ma'am. Thank you again, ma'am. Thank you. Thanks. Over to you, Rohini. Okay. Yes, Rohini. You're muted. Ma'am. Thank you so much, Shabad. Shruti, do we have another questions also? Like further questions? I think we can have the vote of thanks. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for such a thoughtful session. And I would like to call our co-convener, Dr. Sharita Pandey, ma'am, for the official vote of thanks. Over to you, ma'am. Thank you, Rohini. Namaskar and good afternoon to one and all gathered here. I, Sarita Pandey, deem it a privilege to propose the vote of thanks on behalf of entire English department. It is such an honor for all of us to present among such dignitaries. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution in making it a great success. I extend my sincere gratitude to our honorable guest speaker, Seenu Joseph Ma'am, for taking out time from her busy schedule to grace the event. We are just touched by your beautiful personality, Ma'am. Thank you for your spellbinding and insightful thoughts on such a relevant issues like menstruation, its restrictions, and the cultural practices related to it with the scientific lens. You are not only a great scholar, but indeed a great educator too.
I'm so glad listening to you that I can go on and on appreciating you, ma'am. And it's certain that we'll be following you to satiate our intellectual appetite in future. Thank you once again, ma'am. Now, I extend my thanks to our respected manager, sir, Dr. Shashikant Dixit, sir, to bless us for this event. I must also thank our principal, Dr. Rachna Dubey, ma'am, for her constant support and best wishes. My special thanks to Vidisha and the entire Indic Warrior group. As we know that this was the last event of our webinar series, I must thank our head of department, Dr. Bhanumati Mishra ma'am, for convening this webinar series. And in her words, webinar series of these students, by these students, and for these students. Thank you for all your faculty members for constantly guiding and supporting these students for the event. A big thanks and applause for the organizing team of students for working really hard these past few days and bearing with us teachers in order to successfully conduct this webinar. A big thanks to all the participants and all good hearts for contributing your part on and off the camera. I owe my gratitude to non-teaching staff and technical platform, Zoom Cloud Meeting app. Once again, I thank you all for your attention, active participation. Thank you all. Over to you, Rohini. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for the official vote of thanks. Now, I would like to request ma'am, Senu Joseph ma'am, for a group snap, please. Switch on your videos, all of you, so that we can have a group photograph online, virtual photographs. Shivangi, are you taking that? Yes, Rohini, done. Thank you so much, Shivangi. I want to thank Shivangi also because she's a class representative of the master's final class, and she's been doing an extraordinary work in coordinating. Each group has worked so hard, and I'm so glad we have come to the final, conclusion of this wonderful series, and it was a wonderful experience for me too. And in fact, the technical, side has also been handled by the students. So a big applause to all of you. And Senuji, thank you so much for sharing the joy and being at this climax of our webinar series. Wholeheartedly, thank you. And we will be inviting you once again. So looking forward to more such intellectual exchanges. Thank you so much. Thank you, each one of you. My pleasure. Thank you. Thank you. So we come to the end of this webinar series. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram, Jai Bharat. Jai Hind. Jai Hind.